हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर 11 वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। वी नो दैट इन फिजिक्स वर्क इज said to be done if a force applied on a body displaces the body from its initial position। भौतिक विज्ञान के अनुसार जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे प्रारंभिक अवस्था या स्थिति से विस्थापित करते हैं तो उसे कार्य कहते हैं। सो वर्क डिपेंड्स अपॉन टू कंडीशंस। नंबर 1, अ फोर्स मस्ट बी एक्ट ऑन द बॉडी, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। एंड सेकेंड, द बॉडी मस्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजिशन, वस्तु प्रारंभिक स्थिति से विस्थापित होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। What happened if work done by a constant force? एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। Let us take two conditions. Condition 1, when a constant force is applied in the horizontal direction, जब नियत बल समांतर दिशा में लग रहा हो। Let a constant force, नियत बल F, be applied on wooden block placed at position A on smooth surface. Suppose the block moves to new position B in the direction of force, so that its displacement is S. Then work done by the force is given by, बल द्वारा किया गया कार्य होगा W is equal to F into S, where W is the work, F is the force and the S is the displacement of the object. Thus we can define work done on the body by a constant force is equal to the product of the magnitude of the applied force and the distance traveled by the body. किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए नियत बल के परिमाण और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। In second condition, when force is applied at an angle with horizontal direction, जब लगाया गया बल विस्थापन दिशा की रेखा के साथ कोण बनाता है। आइए इसे समझते हैं। Let a force, एक बल applied on a wooden block at an angle theta with horizontal direction. Here, the component of force in horizontal direction is equal to F cos theta. बल का घटक क्रिया बिंदु के समांतर दिशा में होगा F cos theta. The component of force in the upward vertical direction is equal to F sin theta. बल का घटक क्रिया बिंदु क्षैतिज दिशा में होगा F sin theta. Let the block moves horizontally and occupies a new position B so that it travel a distance S. A से B तक ब्लॉक ने S दूरी तय की। Since F sin theta does not produce displacement in the block in the upward direction, F sin theta विस्थापन ब्लॉक का ऊपर की तरफ नहीं करता है। So only the force that displaces the block is F cos theta. अर्थात जो बल वस्तु को विस्थापित करता है वह है F cos theta. According to the definition of work done, कार्य की परिभाषा के अनुसार W is equal to force applied into distance traveled. So W is equal to F cos theta into S. So we can write Fs cos theta, or W is equal to F dot S. F dot S is written as dot product of F and S. Thus, work done on a body by a force is defined as the product of magnitude of the displacement and the force in the direction of the displacement of the body. किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गति की दिशा में बल के घटक के क्रिया बिंदु द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, धनात्मक और ऋणात्मक कार्य। नंबर 1, पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य। अ वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यदि वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो तो उसे धनात्मक कार्य कहते हैं। एज work is done here in the direction of force, so
the angle cos theta is equal to 0 degree. So the work is equal to F dot S cos 0 degree. According to the table, cos 0 degree is equal to 1. So work is equal to force into displacement. आइए उदाहरण से समझते हैं. Example 1. When a coolie lifts a box from the ground to put it on his head, work done is said to be positive. जब कूली बॉक्स को जमीन से उठाकर अपने सिर पर रखता है तो यह धनात्मक कार्य हुआ, क्योंकि कूली बॉक्स पर फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है और बॉक्स ऊपर की तरफ ही डिस्प्लेस होता है या विस्थापित होता है. अतः बल की दिशा में ही वस्तु विस्थापित हुई. इन एग्जाम्पल 2, इन ए टग ऑफ वार वर्क डन बाय द विनिंग टीम इज पॉजिटिव. रस्साकसी के खेल में जीतने वाली टीम का कार्य धनात्मक होता है, क्योंकि टीम रस्सी को पीछे की तरफ खींचती है या पीछे की तरफ बल लगाती है और रस्सी भी उसी दिशा में मूव करती है. एग्जाम्पल 3, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए फॉलिंग बॉडी इज पॉजिटिव. गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, क्योंकि वस्तु गुरुत्व बल की दिशा में ही विस्थापित होती है. सेकेंड केस इज नो वर्क डन और जीरो वर्क डन. कोई कार्य नहीं किया गया व शून्य कार्य किया गया. नो वर्क इज डन बाय द फोर्स एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. अर्थात बल द्वारा कोई कार्य नहीं होता जब बल समकोण पर विस्थापित वस्तु पर लगता है. मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. So we can put the value of theta. W is equal to F cos 90. So here cos 90 is equal to 0. So 0 work is done. आइए उदाहरण से समझते हैं. Example 1. Work done by the force of gravity on box lying on the roof of bus moving with constant velocity on a straight road is 0. समांतर चलती हुई बस की छत पर रखे बॉक्स पर गुरुत्व बल द्वारा शून्य कार्य हो रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि गुरुत्व बल जो ग्रेविटी फोर्स है एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, जबकि बॉक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है. इन अनदर केस नो वर्क इज डन. जब हम भारी वस्तु पर बल लगाए और वह अपनी जगह से ना हिले तो हम कह सकते हैं कि कोई कार्य नहीं किया गया. नो वर्क इज डन हेयर. आइए फॉर्मूले में समझते हैं. व्हेन द अप्लाइड फोर्स फेल्स टू डिस्प्लेस द बॉडी मीन्स देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0. वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन S इज इक्वल टू 0. सो द वर्क इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट केस इज नेगेटिव वर्क डन, ऋणात्मक कार्य. वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. किया गया कार्य ऋणात्मक होगा जब वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा की विपरीत दिशा में वस्तु विस्थापित हो. मीन्स इफ थीटा हेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री देन W is equal to Fs cos 180 degree. The value of cos 180 degree is equal to -1. So W is equal to minus Fs. आइए उदाहरण से समझते हैं. When an object is lifted upward to certain height, then the work done by the force of gravity on the object is negative. जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो गुरुत्व बल के विपरीत यह कार्य होता है जो कि ऋणात्मक है. The angle between the force of gravity and the displacement of the object is 180 degree. In tug of war, work done by the losing team is negative. Losing team applies a force on the rope in the backward direction, but the rope is displaced in the forward direction. अर्थात रस्सी विपरीत दिशा में मूव हुई, इसलिए नेगेटिव कार्य हुआ. नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का मात्रक. In SI, unit of work is joule. It is represented by capital J. 1 joule is equal to 1 Newton meter because work is equal to force into displacement. Here Newton is the unit of force
and meter is the unit of displacement. Definition of joule. Work done is said to be 1 joule if 1 Newton force acting on a body displaces the body through 1 meter in its own direction. किसी वस्तु पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल है जब 1 न्यूटन बल वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित कर दे.